کی بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈینگی مچھر کے شہریوں پر حملے تیز ہو گئے۔ ڈینگی رواں سیزن میں لاہور میں 3 زندگیاں نکل گیا۔ ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے اموات کی تصدیق کر دی۔ ادھر لاہور سے ڈینگی کے 8 نئے مریضوں کی بھی تصدیق۔ علامہ اقبال زون میں ڈینگی بخار کے 4 مریض رپورٹ ہوئے۔ ڈینگی مچھر کے شہریوں پر حملے تیز ہو گئے۔ ڈینگی رواں سیزن میں لاہور میں 3 زندگیاں نکل گیا۔ ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے اموات کی تصدیق کر دی۔ ڈینگی بخار سے 2 اموات پرائیویٹ اسپتالوں میں ہوئیں، 1 موت میو اسپتال میں رپورٹ ہوئی۔ دوسری جانب لاہور سے ڈینگی کے 8 نئے مریضوں کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ علامہ اقبال زون میں ڈینگی بخار کے 4 مریض رپورٹ ہوئے۔ نشتر زون سے 2 نئے مریض اسپتال جا پہنچے۔ گلبرگ شالامار زون میں ڈینگی بخار کے ایک مریض کی تصدیق ہوئی۔ ذرائع کے مطابق رواں سال ڈینگی سرویلنس مہم میں لاپرواہی کے باعث ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کی رپورٹنگ نہ ہونے کے باعث مریضوں کی درست تعداد کی نشاندہی نہیں ہو سکی ہے۔ ماہرین کے مطابق سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی علامات کے حامل مریضوں کی تعداد رپورٹ ہونے والے مریضوں سے کہیں زیادہ ہے۔ شہر میں زہریلی آلودگی کے ڈیرے برقرار۔ لاہور آج بھی دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ شہر کا مجموعی AQI 295 رہا۔ مختلف علاقوں میں آلودگی کی شرح 900 ریکارڈ۔ سول سیکریٹریٹ میں سب سے زیادہ 942 رہا۔ شالیمار روڈ 713، جوہر ٹاؤن میں شرح 513 رہی۔ شہر پر شدید اسموگ کا خطرہ منڈلانے لگا۔ ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ آج درجہ حرارت 20 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ شہر زہر آلودہ فضا میں ڈوب گیا۔ صبح کے اوقات میں لاہور آج بھی دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار پایا۔ شہر کا مجموعی AQI 295 رہا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں شرح 600، 700 اور سول سیکریٹریٹ میں تو شرح 900 سے بھی زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ سول سیکریٹریٹ میں سب سے زیادہ AQI 942 رہا۔ شالیمار روڈ پر آلودگی کی شرح 713 ریکارڈ کی گئی۔ جوہر ٹاؤن میں AQI لیول 513، DHA فیز 5 میں آلودگی کی شرح 418 ریکارڈ کی گئی۔ صدر کینٹ میں AQI لیول 488 اور برکی روڈ پر آلودگی کی شرح 416 رہی۔ واضح رہے کہ سرحد پار سے آنے والا آلودگی کا دباؤ پنجاب کو فوری لپیٹ میں لے کر AQI بڑھا رہا ہے۔ ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہری ماسک پہنے، غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں۔ طبی ماہرین کے مطابق بچوں، بزرگوں اور سانس کے مریضوں خصوصی احتیاط کریں۔ طبی ماہرین کے مطابق بچوں، بزرگ اور سانس کے مریض خصوصی احتیاط کریں۔ اسکولز، کالجز اور اسپتالوں کی کھٹاریں وسیع اب نہیں چلیں گی۔ دھواں پھیلانے والی ہیوی گاڑیوں پر شکنجہ سخت۔ ورک سرٹیفکیشن فوری لازمی قرار۔ اسموک تدارک کے لیے کارروائیوں میں 116% اضافہ۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو 17 کروڑ 49 لاکھ جرمانے کیے۔ دھواں پھیلانے والی ہیوی گاڑیوں پر شکنجہ سخت۔ سرکاری اور نجی اسکولز، کالجز اور اسپتالوں کی خستہ حال بسیں اب سڑکوں پر نہیں چل سکیں گی۔ دھواں خارج کرنے والی گاڑیاں فوری ضبط کر لی جائیں گی۔ ویک سرٹیفکیشن حاصل کرنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ حکام کے مطابق یہ اقدامات انسداد اسموگ مہم کا حصہ ہیں۔ طلباء اور سٹاف کو لانے والی خستہ حال گاڑیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا حکم دے دیا گیا۔ سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کو آخری وارننگ جاری کر دی گئی۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق بڑی گاڑیاں اور بسیں معیار پر پوری نہ اتری تو قانونی کارروائی ہوگی۔ DG عمران حامد شیخ کا کہنا ہے کہ تمام ہیوی ٹرانسپورٹ کی ہنگامی انسپیکشن اور مرمت فوری مکمل کریں۔ غیر معیاری گاڑی پکڑی گئی تو جرمانے کے ساتھ گاڑی بھی قبضے میں لے لی جائے گی۔ پنجاب رولز آف بزنس میں بڑی ترامیم کا مسودہ تیار۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن محکمہ ہوم کو دینے کی تیاری۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن اور دیگر معاملات محکمہ داخلہ دیکھے گا۔ اسکول ایجوکیشن سے مدارس کے انتظامی معاملات واپس لیے جائیں گے۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن متعلقہ انتظامی معاملات ہوم ڈپارٹمنٹ کے سپرد کرنے کی تجویز۔ پنجاب رولز آف بزنس میں بڑے پیمانے پر ترامیم کا مسودہ تیار کر لیا گیا۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کی ذمہ داری بھی ہوم ڈپارٹمنٹ کو منتقل کرنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق مدارس کی رجسٹریشن سمیت دیگر ذمہ داریاں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے واپس لے کر محکمہ داخلہ کے حوالے کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے پرانی شک ڈی ختم کرنے کی سفارشات کی گئی ہیں۔ اسکول ایجوکیشن سے مدارس کے انتظامی معاملات واپس لیے جائیں گے۔ ترمیمی مسودہ جلد کابینہ کو بھجوایا جائے گا۔ منظوری کے بعد محکموں کے اختیارات میں نمایاں تبدیلیاں ہوں گی۔ مدارس کے انتظامی امور کی از سر نو تقسیم کی تجاویز ایوان وزیر اعلیٰ سے موصول ہوئیں۔ جعلی نمبر پلیٹس کے خلاف سخت کارروائیوں کا فیصلہ۔ جعلی نمبر پلیٹس لگانے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ مانیٹر شروع، جبکہ سیف سٹیز حکام کے مطابق شہری اپنی گاڑی کو ایکسائز سے جاری شدہ نمبر پلیٹس استعمال کریں گے۔ کسی شہری کو معافی نہیں دی جائے گی۔
अपनी गाड़ी पर किसी दूसरी गाड़ी का नंबर लगाकर चलाने वाले कानून की गिरफ्त में लाए जाएंगे। जाली नंबर प्लेट्स के हामिल गाड़ी और मोटरसाइकिल मालिकान के खिलाफ थानों में मुकदमात दर्ज होंगे। जाली नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का फैसला कर लिया गया। शहरी अपनी गाड़ी के लिए एक्साइज से जारी शुदा नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करें। जाली नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वाली बेशतर गाड़ियों को पॉइंट कर लिया गया। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी शहरी को मुआफी नहीं दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि जाली नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करके गाड़ियों को मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल किया जाता है। रोजाना शहर में चलने वाली गाड़ियों को एक्साइज के डाटा के मुताबिक चेक किया जा रहा है। एक माह के दौरान कम से कम 1000 गाड़ी मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुई गैस के सार्फिन के लिए बड़ी खबर, कंपनी ने LPG सिलेंडर्स की फराहमी शुरू कर दी। सिलेंडर की कीमत के साथ डिलीवरी चार्जेस भी अदा करना होंगे। कंपनी को 7500 रुपये सिक्योरिटी देना होगी। सार्फिन से 1500 रुपये रेगुलेटर समेत दीगर आलात वसूल किए जाएंगे। शहरी LPG गैस सिलेंडर घर बैठे हासिल कर सकेंगे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने LPG सिलेंडर्स प्रोजेक्ट के तहत सप्लाई का आगाज कर दिया। 500 रुपए डिलीवरी चार्जेस पर होम डिलीवरी की सहूलत मुयस्सर होगी। कंपनी ने 7500 रुपए सिलेंडर सिक्योरिटी मुकर्रर की है। ओगरा की मुकर्रर रेट पर LPG दी जाएगी। सार्फिन से 1500 रुपए रेगुलेटर समेत दीगर आलात की मद में वसूल किए जाएंगे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने तमाम दफातर से सार्फिन को होम डिलीवरी की सहूलत मौजूद होगी। सार्फिन दफातर के साथ साथ ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकेंगे। कंपनी की टीमें सिलेंडर डिलीवर करने पर चार्जेस वसूल कर सकेंगी। धर्मपुरा में जुडिशल रेस्ट हाउस बनाने का मंसूबा, महकमे खजाना ने 18 करोड़ 40 लाख रुपए जारी कर दिए। सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन के लिए 18 करोड़ 60 लाख मुंतकिल। रायवंड में सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 40 करोड़ दिए गए। में सरकारी जुडिशल रेस्ट हाउस तामीर करने का मंसूबा शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए महकमे खजाना ने 18 करोड़ 40 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन के लिए 18 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए गए हैं। रायवंड में सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी बजट जारी किया गया है। रायवंड सीवरेज और वाटर सप्लाई के लिए 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। महकमे खजाना ने ये बजट मज़कूरा महकमों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया है। हुकूमत पंजाब ने दफ्तरी कामों के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तमाम फाइल वर्क अब ई-फास्ट पर मुंतकिल कर दिया गया है। ई फाइलिंग ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम पर तमाम दफ्तरी काम मुंतकिल कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने तमाम PMS अफसरान की ACR को भी ऑनलाइन कर दिया है। दूसरी जानिब LDA के एम्प्लॉयज कोटा में प्लॉट लेने वाले मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर, एडमिनिस्ट्रेशन विंग ने लिस्टें तैयार करना शुरू कर दी हैं। 2010 के मनसूख होने वाली बैलेटिंग अलॉटमेंट 1250 से जायद मुलाजमीन को रिलीफ मिलेगा। कैटेगरी 3 मरला, 5, 7, 10 और 1 कनाल के प्लॉट्स होंगे। कम से कम उजरत न देने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ शिकंजा कस लिया गया। इंस्पेक्शन मजीद तेज, उजरत की अदायगी के लिए फैक्ट्रियों पर सख्त चेकिंग की जाएगी। स्पेशल ब्रांच को भी इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग का टास्क दे दिया गया। लेबर कावरीन की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई और मुकदमात होंगे। मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ और कम से कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने का अज़्म। कम से कम उजरत ना देने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ शिकंजा कस लिया गया। फैक्ट्रियों और सनती यूनिट्स में सख्त चेकिंग का फैसला भी किया गया है। स्पेशल ब्रांच को भी इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग का टास्क दे दिया गया। हुकाम के मुताबिक लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदाद शुमार के मुताबिक सूबे में अब तक 1,66,217 इंस्पेक्शंस की जा चुकी हैं। रवा माली साल में कम उजरत देने पर 300 से जायद मुकदमात भी दर्ज हुए। इन इंस्पेक्शंस में 23 लाख से जायद मजदूरों को मुकम्मल उजरत दिलवाना मुमकिन हुआ। दूसरी जानिब OSH सेफ्टी ड्राइव के दौरान 8,690 इंस्पेक्शंस की गई। 4,773 इदारों को वार्निंग या एडवाइजरी जारी हुई। 2,094 खिलाफ वर्जियों पर कानूनी कार्रवाई की गई। 378 FIRs दर्ज करके 33 यूनिट्स को सील किया गया। इम्तहानात में असातिज़ा को मुआवज़ों की अदम अदायगी, लाहौर बोर्ड ने अदायगियों के लिए बोर्ड स्टाफ की छुट्टियां बंद कर दी। सुपरवाइजरी स्टाफ को अदायगियों का अमल तेज कर दिया गया। दूसरी जानिब स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती के लिए दरखास्त जमा करवाने की तारीख में मजीद 2 रोज़ की तौसी दे दी गई। लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात में असातिज़ा को मुआवज़ों की अदम अदायगी के मामले पर लाहौर तालीमी बोर्ड ने अदायगियों के लिए बोर्ड स्टाफ की छुट्टियां बंद कर दी। लाहौर तालीमी बोर्ड ने सुपरवाइजरी स्टाफ को अदायगियों का अमल तेज कर दिया है। बोर्ड हुकाम का कहना था कि 6,500 सुपरवाइजरी स्टाफ को उनके अकाउंट में अदायगियां हो चुकी हैं। जिन असातिज़ा को अदायगियां नहीं हुई उनके बैंक अकाउंट नंबर दरकार हैं।
बोर्ड हुकाम का मजीद कहना था कि बोर्ड का स्टाफ दिन रात काम करके मुआवजे से महरूम सुपरवाइजरी स्टाफ को अदायगियां करेगा। दूसरी जानिब स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती के लिए दरखास्त जमा करवाने की तारीख में मजीद 2 रोज की तौसीह दे दी गई है। अब उम्मीदवार 26 नवंबर तक दरखास्त जमा करवा सकेंगे। 1 दिसंबर को मेरिट लिस्ट सुबह 10 बजे स्कूलों के बाहर आवेजा की जाएगी। मुंतखब उम्मीदवारों के इंटरव्यू 4 दिसंबर को लिए जाएंगे। 5 दिसंबर को मुंतखब उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। अभी तक 2.5 लाख दरखास्तें जमा हो चुकी हैं। बात करेंगे लेस्को की। लेस्को में खराब मीटर्स की तादाद बढ़ गई। खराब और जले सिंगल फेस मीटर्स की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। खराब 3 फेस मीटर्स की तादाद 2400 रिकॉर्ड। कंपनी के पास मीटर्स का टास्क खत्म होने की वजह से तब्दीली का काम ना हो सका। सार्फिन को औसत बिल्स भिजवाए गए। लेस्को में खराब होने वाले सिंगल और 3 फेज मीटर्स की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। खराब और चलने वाले सिंगल फेज मीटर्स की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। खराब होने वाले 3 फेज मीटर्स की तादाद 2400 रिकॉर्ड की गई है। लेस्को के पास मीटर्स का स्टॉक खत्म होने की वजह से तब्दीली का काम नहीं हो सका है। नेपरा कवानीन के तहत खराब मीटर्स को तब्दील करना लेस्को की जिम्मेदारी है। ताहम स्टॉक की अदम फरामी की वजह से तब्दील करने की बजाय औसत बिल्स भिजवाए गए। लेस्को की जानिब से डिफेक्टो कोड लगाने पर सार्फिन को औसत बिल्स का अजरा किया गया। वाज़ेह है कि लेस्को ने वजारत पावर डिवीजन के हिदायत पर आम मीटर्स लगाने पर पाबंदी आयद की थी, जिसके बाद सिंगल फेस स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी भी सुस्त रवि का शिकार हो गई। नाबीना अफराद अपने मुतालबात के लिए डट गए। मॉल रोड पर धरना 15 रोज भी जारी। डेली वेजेस को मुस्तकिल करने, नाबीना अफराद को 1% माजूर कोटा देने का मुतालबा। बोले जब तक मुतालबात की मंजूरी की गारंटी नहीं दी जाती उठेंगे नहीं। चेरिंग क्रॉस में नबीना अफराद का एहतजाजी धरने को 15 रोज हो गए मगर सुनवाई के लिए कोई न आया। शहर की अहम शाहराह चेरिंग क्रॉस पर जारी धरने के नबीना अफराद ने कैंप लगा लिए। कहते हैं हुकूमत बसारत से महरूम अफराद के लिए मजदूरी कोटे में अलहदा 1% मुख्तस करे और डेली वेजेस को मुस्तकिल करे। हमारे सिंपल से मुतालबात हैं, जो हमारे डेली वेजेस पे लोग काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए। 11 सालों से हम कहते आ रहे हैं, तो जब तक हमें परमानेंट नहीं किया जाता तो हम इधर ही अपना एहतजाज जारी रखेंगे। बस ये सोशल वेलफेयर की हट दर्मी है जो नहीं आ रहा है अभी तक। तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं हमें इधर बैठे हुए, तो कोई गवर्नमेंट सुनवाई नहीं कर रही। गवर्नमेंट को कोई पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ कोई इंसान बैठे हुए हैं या नहीं। बसारत से महरूम अफराद का कहना है कि हम इस माशरे का हिस्सा हैं, रोजगार से महरूम ना किया जाए। 15 दिन हो चुके हैं और बेसरो सामान हम यहाँ पर मौजूद हैं। अपने खाने पीने का इंतज़ाम भी खुद कर रहे हैं और भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है हमें, और यहाँ सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। हमें जो मुस्तकिल जो है वो किया जाए परमानेंट जॉब पर, ठीक है। हमें काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी एजुकेटेड हैं, ठीक है, और हम बस यही चाहते हैं कि हमें मुस्तकिल अपनी जॉब मिल जाए। नबीना अफराद सर्द मौसम में खुले आसमान तले हुकूमत के जवाब के मुंतजिर हैं। नबीना अफराद का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेंगे। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। यूईटी में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत टैलेंट हंट बॉक्सिंग यूथ स्पोर्ट्स लीग की इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने इफ्तिताह किया। फेडरल एचईसी के तामुन से यूईटी में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत टैलेंट हंट बॉक्सिंग यूथ स्पोर्ट्स लीग की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क भर की जामिया से तुलबा तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान थे। राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि आला तालीमी इदारों और स्पोर्ट्स में मौजूद तमाम टैलेंट को सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर चुना जाएगा। हम आपको हर फील्ड में आगे आने का मौका दे रहे हैं, और अभी आपने जो डिजिटल यूथ हब देखा, जब आप लोग इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो ये आज के दिन तक कोई 7.5 लाख से ज्यादा बच्चे बच्चियां आप जैसे इस पर रजिस्टर हो चुके हैं। ये आपके लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोल देता है। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि यूईटी हमेशा से नौजवानों की सलाहियतों को निखारने, खेलों के फरोग और सेहतमंद सरगर्मियों के इनेकाद में नुमाया किरदार अदा करती आई है। हमने नेशनल लेवल के पाकिस्तान को 14 प्लेयर्स जो हैं हॉकी में दिए हैं। ये सारे जो हमने दिए हैं ये प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए दिए हैं। एक यूनिवर्सिटी ने 14 प्लेयर्स दिए हैं। मेरे पास एक बच्ची स्क्वाश की है जो इस वक्त नेशनल प्लेयर है। तकरीब में चेयरमैन स्पोर्ट्स कमेटी, मुख्तलिफ जामियात के सरबराहान और पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात से बड़ी तादाद में तुलबा तालिबात ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त